Hello everyone, good morning. Yes, I know Paz, you are present. Good morning. Good morning, Pradyum. Good morning, Shantanu. I want everyone to be ready with your notebook. Yes, ready. Okay. So students, let's start now. In last or in the previous sessions, we are since the previous sessions we have been discussing to be verb, right? So to be verb, yes, okay, ready then. Last time I'm going to discuss today. After that, we are going to start the second verb. Okay. So to be verb we have discussed in different tenses. That is present tense, that is am, past tense, was were, future tense will be, shall be. Okay. After that, we have also seen about first person, second person, third person. First person singular is I, plural is we. Second person singular and plural both are you. Third person singular he, she, it, and plural is they. Okay. After that, we have seen examples, and then yesterday we have discussed about affirmative sentences. Affirmative sentences, as we know, they are positive sentence, simple declarative sentence, and in that we have discussed examples using present tense. See, he is a student, she is a student, or I am a learner, or we can say he was a student, she was a student, they were students. So these are affirmative sentences. After that, we have seen negative sentences in which not is there. For example, he is not working, he was not working, they were not invited. Okay. After that, we have seen future tense. In that, we have seen its negative form. That is, he will not be attending the meeting. We shall not be writing a letter. Then we move towards interrogative sentence. Interrogative sentence is example. Let us see: is he writing? Is she a student? Are you singing? Am I speaking? I told you that helping verb should come at the first position, and after that you are going to continue with subject and verb. So are you singing, in that way. After that, in past tense we have seen was I dancing, were you typing. Then future tense, will he be writing? Shall I be acting? Or shall I be singing? Then we have seen two functions. First, to be verb is used as a main verb. Main verb means in that no extra verb is there, only to be verb is there. For example, I am a teacher, he is a boy, you are students, she was a trainer. Then second function we have seen that to be is used as helping verb. Helping verb means in which one more main verb is there. Example, he is writing, I am reading, you are working. In this writing, reading, working, these all are main verbs, and is, am, are, was, were, these all are acting as a helping verb. Okay, so this we have discussed till now. Now we are going to start with another form of verb, that is to have. So I want you to be ready. I think you are already ready with your notebook. So mention today's date first of all, that is 25th September. And today we are going to discuss to have. To have verb. Till now we have seen to be verb. Now we are going to discuss to have verb. Now in that, again we are going to move in the same way, like present, past, and future. So let's start with present tense. So present में how we are going to use have. देखिए present में there are two forms of have. Shubham. Okay, what about other students? Is my voice not clear? Is my voice not clear to other students also?
clear. Shubham, maybe some network issue. Aditi, no means is it clear or not? Okay, to others it is clear. Shubham, maybe some network issue. Okay, so it may be clear after some time, Shubham. Yes, तो प्रेजेंट टेंस में have की टू फॉर्म्स होते हैं. फर्स्ट इज हैव एंड सेकेंड इज हैज, या फर्स्ट इज हैज, सेकेंड इज हैव. सी, हैव और हैज. हैज कब यूज होता है? हैज आप यूज करते हैं ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ. सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज यूज करते हैं. और हैव हम कब यूज करते हैं? आई, यू, वी, दे या फिर एनी प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. ठीक है, तो एवरी टाइम डू रिमेंबर हैज हम कब यूज करते हैं? ही, शी, इट के साथ यूज करते हैं या फिर किसी सिंगुलर नाउन. एग्जाम्पल, अगर आप किसी का नेम ले रहे हैं राम, तो राम हैज. ओके, और एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, हैव वर्ब आप जब भी यूज करेंगे, ओके, अगर आप इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो इसमें थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म. जब भी हैव को आप हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से यूज करेंगे तब क्या करेंगे हम इसको, इनके साथ जो वर्ब होगी, मेन वर्ब, वो थर्ड फॉर्म में होगी. तो सबसे पहले आप लोग ये लिख लीजिए, देन विल मूव अहेड along with example. Each and everything will discuss properly. तो पहले आप लोग ये लिख लीजिए. Done. Okay. Other students also. Okay, done from everyone's side, I think. Shall we move ahead now? Is there anyone who has not done? Yes, okay. So चलिए, let's move towards example. Starting from he, she, like that will start. सबसे पहले हम has को कैसे करते हैं उसको सेंटेंस देख लेते हैं. ठीक है, has का सेंटेंस देखते हैं. अब देखिए कैसे करेंगे. He has done, okay, completed his work. Full stop. He has completed his work. अब यहाँ देखिए आप लोग, he has completed लिखा है. completed means मैंने आपसे कहा था हम verb की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं has, have के साथ, या have verb के साथ, to have verb के साथ, जितने भी फॉर्म्स होते हैं इसके, उन सभी के साथ हम अगर मेन वर्ब को यूज कर रहे हैं, मेन वर्ब मीन्स किसी एक्शन वर्ड को यूज कर रहे हैं, तो फिर हमको क्या करना होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है. अगर हम शी का एग्जाम्पल देखते हैं, she has written a letter. She has written a letter. तो write, wrote, written, तो हम जानते हैं रिटर्न थर्ड फॉर्म होता है. उसी तरह अगर मैं कहूँ आपसे they have returned the book, तो रिटर्न यहाँ पर मतलब क्या होता है? देखिए दो रिटर्न है, स्पेलिंग डिफरेंट है, वर्ड प्रोनाउंसिएशन सेम है. तो फर्स्ट जो रिटर्न है लेटर मतलब लिखना, और यहाँ रिटर्न करना मीन्स लौटा देना, इस चीज को वापस से दे देना, रिटर्न करना, टू गिव इट बैक. तो रिटर्न द बुक. अब इसी तरह, अच्छा सॉरी, आई हैव डन अ मिस्टेक, वी आर गोइंग टू ओनली फॉर हैज, तो इसकी जगह मैं नेम लिख लेती हूँ और सेम सेंटेंस ले लेते हैं. राम हैज रिटर्न द बुक. राम हैज रिटर्न द बुक. और इट का अगर आप देखते हैं, शुभम आपको वॉइस क्लियर नहीं बेटा, लेकिन अदर स्टूडेंट्स को वॉइस क्लियर है, तो मे बी सम नेटवर्क इश्यू एट योर साइड, बिकॉज दूसरे स्टूडेंट्स को वॉइस क्लियर है. स्टिल आई विल ट्राई टू स्पीक लाउडर. ओके, तो राम हैज रिटर्न द बुक. तो आप देखिए हैज हमने किस तरह से यूज किया है. हमने हैज यूज किया है ही, शी के लिए और राम के लिए. इवन इट के लिए भी आप कर सकते हैं. सपोज आप किसी कैट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इट हैज फिनिश्ड द मिल्क. इट हैज फिनिश्ड द मिल्क, या फिर इट हैज फिनिश्ड, इट हैज ड्रंक, ड्रंक भी कर सकते हैं, DRUNK. इट हैज ड्रंक, इट हैज ड्रंक द मिल्क.
Abhi has gone to Pune. Correct, Aditi? Yes. So now do one thing, students. Note down these examples. Has के examples note कर लीजिए. And you can frame your own examples also. Okay, Shavari has done. Other students done. Okay. Okay. So I want one example from your side. We have our mobiles with us. Okay, Radharani, correct. But I want you to frame a sentence using has. He has read a book. Correct, Shavari? Right now, I want you to give examples of has. She has bought. Correct. She has iPhone. Okay. Aditi, but she has iPhone की जगह आप यहाँ पर पोजीशन बता रहे हैं कि उसके पास वो चीज है. यहाँ पर आप मेन हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हुए बनाइए. राधा रानी सेम. सेंटेंस आपका रॉन्ग नहीं है, बट अभी हम जो कर रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब को यूज कर रहे हैं. तो आप किसी हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हुए बनाइए. सॉरी, मेन वर्ब को यूज करते हुए, एक्शन वर्ड को यूज करते हुए बनाइए. लाइक शी हैज परचेज्ड. राधा रानी सेम टू यू ऑल्सो. शी हैज परचेज कर सकते हैं, शी हैज बॉट कर सकते, शी हैज ब्रॉट कर सकते हैं. ओके चलिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. हैज के बाद हम जाते हैं हैव पर. शी हैव फिनिश. शी हैज शर्वरी. शी हैज. शी हैज गोन. करेक्ट अदिति. शी हैज डन. करेक्ट राधारानी. शर्वरी इट शुड बी शी हैव बेटा. तो करेक्ट दैट. ओके ठीक है. अभी हम हैव पे चलते हैं. तो हैव हमने देखा था, हैव हम किसके साथ यूज करते हैं. जैसे आई हैव sung a song. She has bought cake. Correct. You have you have you have left the meeting. You have left the meeting. Or they have bought a car. Let's take your examples only. किसी केक का ले लेते हैं. We have baked a cake. अब यहाँ पर आपको नेम लेना है या फिर नहीं, कुछ प्लूरल में करना है. She has. प्रार्थना. She has. He has. अदिति. He has. देखो बेटा, इस चीज को थोड़ा सा देखो, ध्यान रखो आप लोग. He, she, it के साथ आपको हमेशा has यूज करना है, have यूज नहीं करना है. You have to use has. Have should be used with I, you, they, we या any plural noun. He has. अदिति, उसको he has करो. It can be I have, you have, they have, we have, or students like children. You have. Correct, Radharani. So students, we have gone to Nagpur. Now correct, Aditi. Students have gone to, let's take Nagpur only, no problem. Have gone to Nagpur. They have done the homework. Correct, Nitya. I have ate. Nahi Sharwari, it should be eaten, beta. Eat, ate, eaten. It should be eaten. E-A-T-E-N. We have brought by. Correct, Shreyas. Students have done with the writing work. Correct. They have gone to dance class. Correct. Okay, students, have you done this? Those are not done. Do it fast. Done. Okay, Ganda has done. They have gone. Ishwari, it should be gone. Okay, Aditi, go on doing. Once it is done, let me know. Okay, Shantanu has also done. Okay, by the time I want you to frame examples. Come on. Go on writing examples, students, of have or has, anything you can take.
I have swum. Okay, Pratna is done. What about Aditi? Is it done? Aditi, I'm waiting for you. Okay, done from Aditi's side. Okay, so now let's move towards. We have completed. He has. Sorry, he has. It should be he has, Yugandhar. इट शुड बी ही हैज नॉट ही हैव। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं पास्ट टेंस की तरफ। अभी हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, यू हैव लेफ्ट, करेक्ट अदिति। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है, हैज हमेशा आपको सिंगुलर के साथ यूज करना है और ही शी इट के साथ यूज करना है, और हैव आपको आई यू दे वी और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करना है। अभी हम जाते हैं पास्ट टेंस की तरफ। ओके, तो पास्ट टेंस में एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, पास्ट टेंस में आपको हमेशा एक ही फॉर्म है इसका पास्ट टेंस में, जो है हैड। तो आपको इवन सिंगुलर हो कि प्लूरल हो, आई हो, यू हो, ही हो, शी हो, कुछ भी हो, यू आर गोइंग टू यूज हैड ओनली। तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल है, आई हैड किक्ड द बॉल। ओके, ही हैड gone to Mumbai. She had visited, she had visited us. They had given the examples. They had gone. Correct, Radharani? Even with we also, we had read this book. So these are the examples of had. So had में कभी confusion नहीं होता है, क्योंकि had एक ही रहता है और ये हमेशा past tense में use होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? It should be taken care of. I had drunk, drunk. Sarvari. It should be I had drunk. शुभम, अभी आपका आवाज क्लियर है क्या? शुभम, बीच में आपको वॉइस प्रॉब्लम हो रही थी, अभी क्लियर है? I had drunk, correct Sharvari? Okay, have you done it? Have you written it? Yes, noted. He had gone to shop, correct ईश्वरी? ठीक है, अब हम चलते हैं। देखिए एक फॉर्म और होता है इसका, जो है पास्ट के बाद फ्यूचर। So let's move towards future tense. He had gone to Goa, correct Aditi? फ्यूचर टेंस में कैसे यूज करेंगे? देखिए जैसे हम अभी तक भी को यूज करते आए हैं, फ्यूचर में हम क्या करते थे, बी यूज करते, लाइक शैल बी, विल बी, उसी टाइप से हम फ्यूचर में जब हम हैव वर्ड को यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे विल हैव, शैल हैव, विल हैव और शैल हैव। और इसमें भी कहीं आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ कोई पर्टिकुलर वर्ब यूज करनी है। विल और शैल आप किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। रादर शैल जो है हम प्रेफर करते हैं आई और वी के साथ यूज करने के लिए, और विल हम सभी के साथ यूज करते हैं। इससे आई विल गो टू पुणे। और हाँ, एक चीज और मैं बताती हूँ, अच्छा आई विल हैव, सॉरी, आई विल हैव गोन टू पुणे, आई विल हैव गोन टू पुणे। They will have baked a cake. Okay. She will have brought ले लेते हैं, brought, she will have brought her car.
वी विल हैव ग्लास ऑफ वाटर, वी विल हैव। ठीक है, ये करेक्ट है अदिति, ये करेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, अभी आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपको कुछ मेन वर्ब भी यूज करना है। यहाँ पर हैव आप क्या कर रहे हैं, उसको दूसरे वे में यूज कर रहे हैं, तो रादर यूज सम मेन वर्ब ऑल्सो इन दैट। हैव यहाँ पर आपका मेन वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है, यस अदिति। तो कोई आपकी मेन वर्ब, कोई एक्शन वर्ड यूज करो उसमें। Correct. She will have left the meeting. Correct, Sharvadi. So let us take left only. We shall have left the meeting. Same example. तो अभी आपको ये नोट डाउन करना है स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। Noted, okay. I will have gone to Pune. It should be gone. I think you were trying to write gone only. Okay, Aditi. Radharani, they will have completed the work, correct? Okay, now I will tell you one thing important which is applicable in all the three tenses. So let's move ahead now. They will have cooked. They will have cooked food. शुभम ये आएगा बेटा. They will have cooked food. Food नहीं लिखो. We shall have blast in class. Okay. Yes, ईश्वरी. ठीक है. अभी देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कंटिन्यूस का. कंटिन्यूस में कैसे यूज करना है. कंटिन्यूस में आपका तीनों आएगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. देखिए जब हम कंटिन्यूस यूज करते हैं, कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस. ओके, तो कंटिन्यूस में हम जानते हैं कि हमेशा क्या होता है, आईएनजी फॉर्म होता है. लेकिन जब टू हैव के साथ हम कंटिन्यूस यूज करते हैं तो वो कौन सा बन जाता है, वो बन जाता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूस. तो कंटिन्यूस को हम परफेक्ट कंटिन्यूस की तरह यूज करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. जब कंटिन्यूस में हैज या हैव ऐड हो जाता है, अभी आप लिखिएगा मत, अभी आप पहले समझो. ये मैं डिलीट करती हूँ. जब हम कंटिन्यूस में हैज, हैव या हैड ऐड कर लेते हैं, उस टाइम वो कौन सा टेंस हो जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. आप लोगों ने जब टेंस पढ़ा है, हमने टेंस पढ़ा था, उस टाइम हम जानते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, प्रेजेंट का बोल रही हूँ, हैज, हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, he has been playing. Okay, since ले लीजिए या for ले लीजिए, for 2 hours. He has been playing for 2 hours. अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस कर रहे हैं. जब भी आप टू हैव के साथ कंटिन्यूस फॉर्म यूज करते हैं, कंटिन्यूस का मतलब यही होता है V1 प्लस आईएनजी. V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. तो जब भी आप कंटिन्यूस के साथ हैव या हैज या हैड यूज करते हैं तो वो कौन सा टेंस कहलाता है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है. ओके, और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, वो भी मैं आपको यहाँ लिख के देती हूँ. दैट विल बी गुड फॉर यू. देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है, subject, he was been studying, he has been, Aditi, it should be he has been. Subject plus has, have या had, क्योंकि हम इसमें past tense का भी देख लेते हैं. ठीक है, प्लस इसके साथ हमेशा बीन आता है. इसका कारण क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. रीजन ये है कि हमने अभी तक देखा है हैज के साथ हमेशा हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी है. ईश्वरी आपको आवाज नहीं आ रही. व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? दूसरे स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? यस. तो ईश्वरी बेटा, सम नेटवर्क इशू एट योर साइड में भी. So after few minutes you may be able to hear me. Okay, everyone. Yes.
तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस बीन, बीन क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हम जब भी हैज हैव को यूज करते हैं, राइट, उस टाइम पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और हम इसमें कंटिन्यूस भी कर रहे हैं, तो कंटिन्यूस में भी हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है। अब वर्ब तो एक ही है। सपोज करो सेंटेंस है आपका, इसको मैं कंटिन्यू करती हूँ, इससे पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज सेंटेंस है आई राइट, ओके, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है आई राइट। अब इसमें हम जानते हैं कि राइट जो है आपकी मेन वर्ब है। अब इसको अगर मुझे कंटिन्यूस करना है तो क्या करूंगी मैं? आई एम राइटिंग करूंगी, और परफेक्ट करना है तो आई हैव रिटन करूंगी। बट अगर मुझे कंटिन्यूस और परफेक्ट दोनों चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूस चाहिए, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हमें ये तो पता है कि वर्ब हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और कंटिन्यूस में आईएनजी भी आता है, इसलिए क्या ऑप्शन है हमारे पास? हमारे पास ऑप्शन है बी का। तो हम बी की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हैव बीन, और फिर राइट का राइटिंग कर देंगे, आई हैव बीन राइटिंग। उसमें सिंस फॉर जो भी होगा वो होगा सेंटेंस में। तो समझ में आया हमने बीन क्यों यूज किया? बीन यूज करने का कारण क्या है? कारण ये है, रीजन ये है कि हमें हैव हैज के साथ, यस, तो हैव हैज के साथ हमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, और कंटिन्यूस में हमें आईएनजी भी लगाना होता है। इसलिए इन दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या हुआ? हमने बी में थर्ड फॉर्म लगा दिया, तो बी का थर्ड फॉर्म हो गया बीन। अब इसको कंटिन्यू करते हैं हम। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। इसमें सिंस फॉर यूज करते हैं हम क्योंकि हम टाइमिंग शो करते हैं कि हम कोई काम करें तो कब से करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस का, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। और सब जब फ्यूचर होता है तो विल हैव शैल हैव हो जाता है। शी हैज बीन टीचिंग, करेक्ट। अभी मैं देखती हूँ आप लोगों ने जो रिप्लाई किया है। शी हैज बीन कुकिंग, करेक्ट शर्वरी। आई हैव बीन वर्किंग, करेक्ट ईश्वरी। शी हैज बीन टीचिंग, करेक्ट राधा रानी। तो समझ में आया आपको? बीन यूज करके हमें क्या करना होता है? इस टाइप से सेंटेंस फ्रेम करने होते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो हैज हैव वाला फंडा इसमें भी काम आएगा। हमें ये पता होना चाहिए हैव कब यूज करना है, हैज कब यूज करना है। जैसे आई हैव बीन watching, I have been watching TV since morning. He has been dancing, correct Aditi? या फिर we have been playing for 3 hours. ये देखिए, हैज अगर आपको यूज करना है ये नेम के साथ यूज कर सकते हैं। राम हैज बीन रीडिंग कर लेते हैं, रीडिंग दिस बुक for 5 days. I have been attending class since morning. Correct Radha Rani? Yes. तो अभी हमने हैज के देखे हैं, अब हम हैड का भी देख लेते हैं। They had been enjoying picnic for 4 hours. Or Dia had been cooking since 9 AM. Okay. तो इस टाइप से आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, तो यू कैन नोट डाउन दीज एग्जांपल्स। They have been directing a movie since 12 months. Correct, Radhika? He has, Aditi, it should be he has, beta. He has been going करो उसको क्योंकि कंटिन्यूअस होगा। हाँ, they have been playing, correct? Yes, Ayush, correct. They had been eating, correct, Shubham?
He has been going. Correct. Okay, if it is done, write the right there done so that I can move ahead. Done. Okay. तो हम आगे बढ़ें. नेक्स्ट है फ्यूचर का देख लेते हैं. अभी हमने प्रेजेंट और पास्ट का किया था. दे हैव बीन ईटिंग. करेक्ट ईश्वरी. वी हैड बीन स्टडिंग. करेक्ट राधा रानी. ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ. फ्यूचर में कोई खास डिफरेंस नहीं है. बस डिफरेंस क्या है, देखिए, will have been वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. ये इसका आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है. ठीक है, तो इसके हिसाब से हम बनाते हैं सेंटेंसेस. विल या शैल कुछ भी हो सकता है. ओके, he will have been working here. He will have been working here for 10 years. Or I shall have been teaching since 2015. ये देखिए, will have shall have को आप इस टाइप से यूज करेंगे. will have या फिर shall have और plus be. नोट डाउन कर लीजिए एग्जाम्पल्स एंड इवन यू कैन ऐड फ्रॉम योर साइड ऑल्सो. We are going to discuss the function of to be to have verb. जैसे हमने to be verb के functions discuss किए थे, अब हम to have के function discuss करेंगे. तो next heading will be function. I will have been teaching here. Correct, Aditi? Okay, if it is done, shall I move ahead? I think it is done. ठीक है. So next is okay. Next, as I told you, we are going to discuss the functions. Functions of she will have been teaching. Correct, Radharani? Functions of to have verb. अब देखिए to have verb किस तरह से वर्क करती है. आपका एक चैप्टर भी है, आपकी कौन है, शॉर्ट चैप्टर है, जिसमें हमने to have verb गिवन है, उसको डिस्कस भी किया है. आपकी टेक्स्ट बुक में है वो चैप्टर. ओके, तो वो वर्ब वही है. टू हैव में किस तरह से आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो हम इसमें डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम यूज करते हैं टू शो पोजीशन. पोजीशन क्या होता है? देखिए, पोजीशन का मतलब होता है बिलोंगिंगनेस. कोई किसी चीज को कोई चीज किसी की है. ओके, या सपोज करो मेरे पास बुक है, तो मैं क्या कहूंगी? आई हैव अ बुक. आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल. करेक्ट ईश्वरी? आई हैव अ बुक. अब यहाँ पर आप लोगों ने पहले मुझे सेंटेंसेस बताए थे. स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स मुझे सेंटेंस बताए थे. वो सेंटेंस इस पॉइंट में फिक्स, मतलब आप कह सकते हैं फिक्स होंगे, सही बैठेंगे. आई हैव बुक, कोई चीज आपके पास है. वी हैव अ कार, तो हमारे पास कार है. he has a mobile, उसके पास मोबाइल है. That means it is showing you possession कि कोई चीज किसी के पास है, कोई उसको possess कर रहा है, या कोई उसको belong करता है, या वो चीज किसी को belong करती है. तो फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका? यू कैन नोट डाउन द नंबर, दैट विल बी करेक्ट. फर्स्ट फंक्शन क्या है? टू शो पोजीशन. तो अभी आप क्या करेंगे? इसको नोट डाउन करेंगे एंड यू आर गोइंग टू गिव मी एग्जांपल्स ओवर हियर. इसमें आप एक टाइप और लिखने का, वो है ही हैज अ कार. करेक्ट अदिति? आई हैव गॉट अ बुक. जैसे आई हैव अ बुक की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, आई हैव गॉट अ बुक. शी हैज अ मार्कर. करेक्ट? ठीक राधारानी? हाँ, तो इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, आई हैव अ नेकलेस. करेक्ट राधारानी? यस. तो आई हैव गॉट अ बुक,
दैट आल्सो कैन बी रिटन। और आई हैव को आप आई हैव भी कर सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आई हैव का। यस ओके। आई हैज शर्वरी आई हैव लिखो बेटा, हैज विल कम विद ही और शी और इट या किसी सिंगुलर नाउन के साथ, तो आई हैव करो शर्वरी। I have got a smartphone, correct Ayush? I have a certified job, correct? I have a bike. He has, Aditi, it should be he has. I have a butter pen, okay, correct Ishwari. What about other students? मुझे कुछ students की continuous reply आ रहे हैं, कुछ students मुझे reply नहीं कर रहे हैं. I have a laptop, correct? He has storybook, correct Aditi? So I want reply from everyone. Sharbari को आवाज नहीं आ रही है सही से. I have a video game, correct part? I have a bike, correct part? They have television. Television की spelling correct करो नित्या. She has got a necklace, correct? He has notebook. He has a computer. Yes. I have a pencil. I have a mobile, correct? What about other students? I have a cycle. Yes. Okay, he has a unicorn, correct? He has a cycle. He has a big house. ओके तो अभी हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। जब कुछ ऐसे एक्शन वर्ड्स होते हैं, देखिए सेकंड चलते हैं, ही हैज अ यूनिक, ओके टेलीविजन, यस नित्या नाउ करेक्ट। कई बार सेकंड फंक्शन है, कई बार जो टू हैव वर्ब होता है वो एक्शन वर्ब को रिप्लेस करता है। ओके तो सेकंड है replaces some action verbs। कुछ ऐसी एक्शन वर्ब्स ही होती हैं, ओके एक्शन वर्ड बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइक ईट, ड्रिंक या टेक। सपोज करो ईट, अभी आप लिखो नहीं, अभी आप पहले समझो कि आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि हमने उसको पूरा सेंटेंस फ्रेम करके नहीं लिखा है। जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये इन वर्ड्स का मतलब क्या हो रहा है। देखिए रिप्लेशन समटाइम्स क्या होता है, जैसे अगर मैं कहूँ आपसे आई हैव माई लंच एट 1 PM, सपोज करो सेंटेंस है ये, या फिर he has his class at 9 AM। ओके अब यहाँ पर आई हैव माई लंच, आई हैव माई लंच का मतलब क्या होता है, मैंने लंच ले लिया, मेरा लंच हो गया, मैंने लंच कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर आपका अगर सेंटेंस में कहूँ आई हैव टेकन माई लंच और आई हैव हैड माई लंच बोल सकते हैं, या फिर आई फिनिश्ड माई लंच बोल सकते हैं। तो फिनिश की जगह हमने क्या यूज कर लिया, आई हैव, मैंने लंच ले लिया, आई हैव माई लेक्चर एट, करेक्ट अदिति। या फिर ही हैज हिज क्लास एट, मतलब उसकी चीज होती है, उसका वो क्लास होता है, उस टाइम पर भी आप कुछ एक्शन वर्ब्स की जगह हैव को यूज या हैज को यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन दीज एग्जांपल्स। ये समझ में आया आपको स्टूडेंट्स? थोड़ा सा ट्रिकी है बट समझो इसको, इजी है, इतना कोई टफ नहीं है। मीन्स कई बार हम कुछ एक्शन वर्ड्स के साथ इसको रिप्लेस कर लेते हैं हैव, दैट्स इट। यस अंडरस्टूड, ओके। एग्जाम्पल्स आप लिख भी लीजिए और मुझे भी फ्रेम करके बताइए कुछ एग्जाम्पल्स। सपोज करो एक और एग्जाम्पल आई विल राइट ओवर देयर, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी। Let's have a cup of coffee. I have my breakfast. Correct राधा रानी। आयुष में इसको रिपीट करती हूँ, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे एक्शन वर्ड्स होते हैं या कुछ वर्ब्स होती है जिसको हम हैव से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल देखो फर्स्ट वाला, आई हैव माई लंच, मैंने अपना लंच ले लिया। उस ले लिया के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, हैव यूज कर रहे हैं। उसी तरह सेकंड देखिए, उसकी क्लास होती है 9 बजे, तो ही हैज हिज क्लास। इसमें आप चाहें तो दूसरी कोई मेन वर्ब भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही हैज हिज क्लास की जगह ही टेक्स हिज क्लास, वो अपनी क्लास लेता है। ही अटेंड्स हिज क्लास, तो अटेंड की जगह हमने हैज कर दिया। लेट्स हैव अ, ओके आई डिड अ मिस्टेक, इट्स कप।
लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी। तो लेट्स ड्रिंक कप ऑफ कॉफी की जगह मैंने क्या कर दिया, ड्रिंक की जगह हैव कर दिया। तो समझ में आया? इसका डाउट था ये, आई थिंक आयुष आपका डाउट था। यस आयुष, क्लियर हुआ? यस ओके। तो दूसरे स्टूडेंट्स का क्या है, आई हैव माई ब्रेकफास्ट, शी हैज डिनर, ही हैज क्लास, आई हैव माई फोन। ओके, आई हैव माई फोन शर्वरी, जो फर्स्ट वाला हमने फंक्शन डिस्कस किया था उसका होगा ये। वी हैव अ टॉक, करेक्ट। अब ये चीज आप पास्ट टेंस के लिए भी यूज कर सकते हो, हैज की जगह हैड यूज कर सकते हो। ही हैड हिज डिनर, he had his dinner, उसने अपना डिनर कर लिया है। I have my apple, yes I have my apple, that's correct। यहाँ पर इसका मतलब हो रहा है कि मैंने एप्पल खा लिया है। तो आप had इस टाइप से यूज कर सकते हैं, पास्ट टेंस के लिए हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स भी लिख लीजिए। लेट्स हैव कप ऑफ टी, करेक्ट अदिति। अब आप इसमें पास्ट फ्यूचर का देखेंगे, फ्यूचर कैसे करेंगे फ्यूचर टेंस के लिए। सेम है, he will have his dinner, he will have his dinner, they had party, correct। तो फ्यूचर टेंस में आपको इस टाइप से यूज करना है। यहाँ पर एटसेट्रा लिख लीजिए क्योंकि सिर्फ ये तीन ही नहीं है। दे हैड स्कूल, करेक्ट। 2 मिनट चल है, ओके। ही विल हैव कॉफी, यस करेक्ट ईश्वरी। जो रिमेनिंग 2 फंक्शंस हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दे हैड अ लेक्चर, करेक्ट अदिति। दे विल हैव अ पार्टी, करेक्ट अदिति। बस लेक्चर की स्पेलिंग करेक्ट करना बेटा। दे विल हैव अ सेशन, यस करेक्ट राधिका, यस अदिति। आई होप आज हमने जो भी डिस्कस किया एवरीथिंग इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। Is there anyone who is having doubt? Sharvari, homework I will send you on group. Yes, okay. Understood, okay. So आज हमने क्या किया है, होमवर्क यू विल गेट ऑन ग्रुप स्टूडेंट्स, प्रद्युम होमवर्क ग्रुप पे मिलेगा। ओके, तो हमने अभी आज का जो सेशन है उसमें हमने टू हैव वर्ब को डिस्कस किया है। ओके, उसको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में कैसे लिखते हैं वो डिस्कस किया है। अलॉन्ग विद दैट वी हैव डिस्कस्ड द फंक्शंस। उसमें फंक्शन में हमने 2 फंक्शन डिस्कस किए हैं। फर्स्ट पोजीशन का फंक्शन डिस्कस किया है, जिसमें कोई चीज़ आपकी होती है, उसको आप बिलोंग करते हो तो आप कैसे लिखते हैं। और सेकेंड हमने एक्शन वर्ब्स को कैसे रिप्लेस करता है, हैव हैज, उसको डिस्कस किया है। जो सेंटेंसेस आपके लिए न्यू नहीं है, बट द थिंग इज हम पॉइंट बाय पॉइंट चल रहे हैं, तो आपके लिए कुछ चीजें ऐसी होंगी जैसे अभी आई हैव माई लंच, आप इस सेंटेंस को यूज करते होंगे बट वो किस पॉइंट के अंदर आता है वो हमने आज डिस्कस किया है कि वो कुछ एक्शन वर्ब के अंदर आता है। ओके स्टूडेंट्स, और आने वाले सेशन में हम जो बाकी के फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये 2 फंक्शंस और हैं। फिर हम अगेन एसर्टिव, तो ये सारे सेंटेंसेस एसर्टिव ही हैं, दैट इज डिक्लेरेटिव हैं। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव हम डिस्कस करेंगे। एंड यू आर गोइंग टू गेट योर सिलेबस फॉर यूनिट टेस्ट, सॉरी यूनिट टेस्ट नहीं, टेस्ट जो होगा उसके लिए मैं आपको सिलेबस सेंड करूंगी। मे बी टुडे आई एम गोइंग टू सेंड यू सिलेबस फॉर योर टेस्ट दैट इज गोइंग टू कम इन अक्टूबर। ओके, ओके स्टूडेंट्स, देन गुड बाय एवरीवन। ओके, गुड बाय।